जैन है और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट सर नूर मौजूद हैं। Assalamualaikum everyone. I am Noor Sadullah Bajwa from Uniguide Consultancy Services and I am serving as a branch manager in Uniguide Consultancy Services. I am an educational counselor and we have been helping students to achieve their dream of studying abroad from last 15 years. And the countries we deal for are UK, US, Canada, Australia, France, Netherlands, Ireland, and the list goes on. So please visit us and do let us know regarding your queries of study abroad, and we will be more than happy to help you out in achieving your dream. Thank you. तो सर ये जो आपने कंपनी है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगों को, इसका आगाज कैसे किया आपने? Basically talking about Uniguide, it is 15 years old company. We have been working for more than 1.5 decade now, and it is led by Sir Tanveer Nazir. He is our CEO, a very visionary man who has a great vision to help students in studying abroad and helping local students in Pakistan to achieve their study abroad dreams. So Islamabad में हम लोगों को almost 6 months हो गए हैं, especially for Bahriya students, and we are providing services free of cost to them. For example, admission application process and interview preparation and visa application. Thank you. What is story behind it? इसकी स्टोरी क्या है? आपने कंपनी स्टार्ट क्यों की? मैंने जैसे कि आपको बताया, CEO is Sir Tanveer Nazir and he has experience of more than 2-3 decades, and he's a very visionary man. He has been helping students from his career. So after some time he started his own company, and Uniguide specifically means that we help students in guiding for their universities, and our slogan is career counseling at its best. Fine. तो सर जब हम नई मार्केट में कोई अगर कंपनी है फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है तो उसको बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, तो आपने ऐसी कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ा ताकि हमें अगर कोई कंपनी खोलनी पड़ जाए तो उसके हवाले से हमें बता। टॉकिंग अबाउट डिफिकल्टीज हर एक को फेस करनी पड़ती हैं और हर टाइम पीरियड की डिफिकल्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आजकल के दौर में अगर हम देखें, ब्रांडिंग, गेटिंग ट्रस्ट, making transparency in the whole process, these are the major things which needs to be addressed. And I firmly believe कि आपका जितना ट्रांसपेरेंट हो के आप एक स्टूडेंट को प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं या उसकी हेल्प करते हैं, वो उतना ही आपके कंपनी के ट्रस्ट बिल्डिंग में लोगों के लिए हेल्पफुल होता। तो अब इस तरह की बहुत सारी कंसल्टेंसी वाले जो हैं फर्म्स हैं या सर्विसेज हैं, बहुत पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी जो है सर्विस हैं। अब आप उनको कैसे डिफर करते हैं, कैसे उनसे आपकी जो है ये कंपनी अलग है, कैसे लोगों को आप यकीन दिलाते हैं कि ये कंपनी उनसे बेहतर है? ऑलराइट, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। पाकिस्तान में आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एजेंट। यस, वी डू नॉट कॉल आवरसेल्फ एजेंट्स। एजेंट कोई मेरे नजदीक कोई वर्ड नहीं है। वी आर एजुकेशनल काउंसलर्स। हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि जी करियर आगे बनाना है, किस फील्ड में बनना चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस चीज में, व्हाट यू शुड ऑप्ट, आपकी डिग्री करने के बाद कौन सी फील्ड में आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा जरूरी है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली दैट हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम अदर कंसल्टेंसीज, फर्स्टली वी आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव फॉर Bahriya University, so that means we have some credibility. We are the sole representative for Minhaj University. We are the sole representative for Pakistan National University. So these are the things which gives us credibility and make us stand alone from other consultancies. Even more, if you talk about, we have been awarded by distinction award by Seneca Polytechnic. It is an institute in Canada. Yes. Moreover, we have been awarded with an award from Mayor of Canada regarding promoting Canada for studies. We have received award from University of from Saskatchewan, which is a region, and we also got an award for promoting it. So we do have multiple awards which shows our distinction from other companies. Fine. तो सर आजकल तो स्कैम भी बहुत ज्यादा हैं, तो उनको आप कैसे लोगों को बताते हैं कि ये स्कैम नहीं है, ये ओरिजिनल है? तो इसका क्या मतलब कि कैसे ट्रस्ट डेवलप करने के लिए सबसे मेन चीज क्या होनी चाहिए? मैं आप लोगों को ओपन बताऊं तो टॉकिंग अबाउट दिस कंसल्टेंसी,
हम लोग स्टूडेंट से चार्ज नहीं करते फॉर बहरिया स्टूडेंट्स, फॉर मनहाज स्टूडेंट्स, फॉर दिस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग। अब बात आती है कि स्कैम उनके साथ होता है जो लोग थोड़ा सा लालच करते हैं। यस। अब हर बंदे के लिए वो चीजें डिफरेंट करती हैं। हम बात करते हैं अपनी कंपनी की, तो वी डू नॉट चार्ज स्टूडेंट एनीथिंग। हम उसको ये नहीं कहते कि जो ट्यूशन फीस आपने हमें देनी है, वी प्रोवाइड देम विद द इनवॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, और स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्यूशन फीस सबमिट करवाता, क्योंकि तो मेजर मनी इन्वॉल्वमेंट तो इसी चीज के अंदर है ना। तो जब स्टूडेंट अपने हाथ से वीजा एप्लीकेशन फीस जमा कर रहा है, अपने हाथ से यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस सबमिट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में स्कैम होने के लिए उसके पास पीछे कुछ बचता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये आपको कंपनी खोले में कितना अरसा हो गया? I have been working in this company for past 5 years, and this company was established in before 2011. So it's been like more than 1.5 decade now. फाइनल सर, और अब जो आने वाला जो दौर है, अगर इसके अंदर आपने अपनी कंपनी को ग्रोथ करनी है, कंपनी को आगे लेके जाना है, तो उसमें आप कौन कौन से ऐसी स्ट्रेटेजीज को यूज करेंगे जिससे आपकी कंपनी आगे जा सके? Got it. Talking about strategies with passage of time change होती रहती हैं। जैसे कि talking about current times, we have recently introduced an application. Students application download करेंगे, they will put their profile in it, और उनके पास यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी कि जी ये यूनिवर्सिटी में आप प्रोग्रेस कर सकते हो फॉर योर फर्दर डिग्रीज। सो दिस इज हाउ यू इनोवेट इनटू थिंग्स एंड हेल्प पीपल। Moreover, we also keep bringing new universities which are feasible for students along with new countries. जैसे कि recently we have introduced a scholarship in Malaysia जो कि 3 years का program है, and it is funded, and university will also pay you 1500 ringgits per month for your living expenses. So these are the things which innovates us from others as well, and we keep innovating ourselves as well. ओके, अगर आपने एक कंपनी को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या इक़दामात करनी पड़ेंगी? Expansions require your research, और आप लोग बिजनेस के स्टूडेंट्स हो, you must have heard about R&D, research and development. Yes, sir. So firstly, to expand, you have to find a place, you have to make research कि अगर मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे whether it is a right place to start a business. So यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे, यहाँ पे इस तरह से चीजें हो सकती हैं, तो it differs a lot. आपको काफी रिसर्च इसमें करनी होती है। तो सर, अगर एक बंदा है वो नई कंपनी का स्टार्टअप ले रहा है, तो उसे लोकेशन का सबसे पहले ये है कि लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे उसके कस्टमर भी आए, क्लाइंट्स भी मिल जाए उसे। तो हम अपनी लोकेशन को कैसे ट्रेस करेंगे कि ये जगह हमारे लिए बेस्ट है? ये हर बिजनेस में डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग अबाउट आवर कंसल्टेंसी बिजनेसेस, स्टूडेंट को रीच आउट करने के मल्टीपल पाथ्स हैं। वी कैन रीच देम थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, एंड दे विल वॉक टू यू। बट एक स्ट्रीम हमारी है, जिस तरह के हम भी ऑफिस हमारा बहरिया के अंदर है, वी आर फैसिलिटेटिंग बहरिया स्टूडेंट्स। सो बहरियंस के लिए इट इज क्वाइट इजी, दे जस्ट वॉक इन, get their information, get their application process, and get their visa done and fly from here. सर, आपकी जो यूनिक गाइड कंपनी है, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं और कहाँ-कहाँ पर हैं? Talking about our branches, we have multiple offices. We do have international offices as well. पाकिस्तान की बात करते हैं, we have our head office in Lahore. We have another office in Lahore which is in DHFS 5. Then we have office in Faisalabad in D Ground. Then we have office in Zafarwal. Then we have office in Bahriya University, and then we have office in UK, USA, and Saudi Arabia as well. तो सर, जो आपके यूके और यूएस में जो बाहर की कंट्रीज के अंदर जो आपके ऑफिसेज हैं, उसमें पाकिस्तानी मतलब कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, हेड्स जो उनसे हैं वो पाकिस्तानी हैं, बट टॉकिंग अबाउट द लो स्टाफ, वो मैन फोर्स चेंज होती रहती है। ठीक है, थैंक यू। तो सर, आपकी जो कंपनी है इसकी पोजीशन क्या है? वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें या मार्केट में बात करें, तो इसकी पोजीशन? अगर आप लोग बात करें ना, अमंग एजुकेशन बिजनेस, वी आर अमंग द टॉप 15, टॉप 10 कंसल्टेंसीज इन पाकिस्तान। तो जो आपकी ये ब्रांड की इमेज है, अकॉर्डिंग टू यू कितनी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कैसी है, किस टाइप? Talking about in this business, brand imaging is very important, and brand imaging is developed after getting credibility from your client.
एंड वी हैव, आप लोग हमारे जाके स्टूडेंट्स के कंसेंट्स देख सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो, रेडिली अवेलेबल ऑन आवर फेसबुक, ऑन आवर गूगल मैप रिव्यूज। फिर उसके अलावा वी हैव वीडियो टेस्टिमोनियल्स, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच शोज आवर क्रेडिबिलिटी। तो आप अपनी कंपनीज को जो लोगों के सामने पेश करते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करते हैं या और भी इसके अलावा कोई प्रोसेस है? सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन राइट। जहां तक मैं समझाऊं कि हम पोर्ट्रे कैसे करते हैं, लोगों तक पहुंचाते मतलब कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपनी कंपनी को लोगों के सामने कि हमारी भी एक कंपनी है, इसके थ्रू बंदा जो है बाहर अब्रॉड स्टडी के लिए जा सकता है, तो आप कैसे लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि हमारी भी एक कंपनी है? जैसे कंपनी हमारी का एजुकेशन सेक्टर में, इफ यू विल सर्च ऑन गूगल स्टडी अब्रॉड कंपनीज इन पाकिस्तान या फिर स्टडी अब्रॉड काउंसलर्स इन पाकिस्तान, तो यू विल फाइंड यूनिगाइड ऑन गूगल। इसी तरह फेसबुक पे एड्स होती हैं, इंस्टाग्राम पे चलती हैं चीजें, वो पेजेस होते हैं विच शोज दैट वी आर प्रेजेंट इन मार्केट एंड विच शोज आवर ग्रोथ एज वेल। तो अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो तो थोड़ी लो है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तानी जो हैं खास तौर पे, तो वो कौन सी कंपनी को या सॉरी कौन सी जो है कंट्री को ज्यादा प्रेफर करते हैं? ऑब्वियसली इन करंट सर्कमस्टांसेस हर स्टूडेंट की ये रिकमेंडेशन होती है कि जो उनका बजट है वो Yes. मिनिमम से मिनिमम हो। सो इट डिपेंड्स ऑन एवरी सिंगल इंडिविजुअल कि वो कौन सी कंट्री परस्यू करना चाहता है, उसके गोल्स क्या हैं, वेदर ही इज सीकिंग परमानेंट रेजिडेंसी या उसने क्वालिटी एजुकेशन लेनी है और वापस आ जाना। जिस तरह मैंने आगे आपको बताया की तरह अगर आप देखें, वी आर डीलिंग विद अ वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में कोई और डील नहीं कर रहा। साउथ कोरिया, जापान, दीज आर द कंट्रीज जहां पे लिविंग कॉस्ट भी आपकी कम है और आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है। तो फिर हम ये प्रोडक्ट स्टूडेंट्स के लिए इनोवेट करते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम और उन स्टूडेंट्स की ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और कौन से मतलब कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें हमारे जैसे जो लोग हैं, मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास के, तो वो आसानी से जा सकते हैं? ऐसी कौन सी कंट्री है? टॉकिंग अबाउट, अब अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हक में बेहतर करें, वी बिलोंग टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री। सो द थिंग इज कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, these are the countries which are readily open for Pakistani students. No doubt visa ratio जो सी है वो चेंज होती रहती है, स्क्रूटनाइजेशन वो डेवलप करते रहते हैं। Obviously they are always looking, other countries are always looking for quality student. Yes. जो बच्चा आए उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ में भी उनकी हेल्प कर सके, तो कंट्रीज सारी अवेलेबल होती हैं। The thing is until unless जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, you never know कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या रखा हुआ है रास्ते में। तो जब तक ट्राई नहीं करेंगे वी नेवर नो कि हमारे लिए था भी कि नहीं भी। तो सर अभी बच्चे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स चूज करते हैं ना बाहर जाने के लिए, तो आपके अंदाजे के मुताबिक ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो ज्यादा बच्चों ने रखा होगा, मतलब कि टॉप लेवल? सर ऐसे नहीं होता कि टॉप लेवल का सब्जेक्ट रैंक नहीं मैं ऐसे कर सकता। इफ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स रैंकिंग, तो उसमें मैं बता सकता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी है, ये रैंक इस प्रोग्राम में अच्छा करती है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो बीबीए, सो आई कैन नॉट एडवाइज यू कि बेटा आप बीबीए छोड़ के ना लिंग्विस्टिक्स में आ जाओ, ठीक है ना। आई वुड एडवाइज यू कि अगर आप बीबीए पढ़ रहे हो ना, तो देन गो फॉर एमबीए, गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, कंसीडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसीडर डिजिटल मार्केटिंग। तो ये फील्ड के साथ रेलेवेंसी क्रिएट होती है। तो अगर जो बच्चे अप्लाई करते हैं बाइक के लिए, तो आप उनके लिए कुछ सब्जेक्ट खुद भी चूज कर सकते हैं कि आपके लिए इस यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट हम आपको बताते हैं कि ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि वी हैव अवेंसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन फ्रांस, और इसके प्रोग्राम्स की बात, इसकी रैंकिंग्स की बात करते हैं फर्स्टली, तो इट इज रैंक्ड नंबर 1, और जो प्रोग्राम में ये रैंक करती है नंबर 1, दैट इज एआई एंड डाटा साइंसेस। फॉर एग्जांपल आपके किसी फ्रेंड ने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर साइंसेस और ही हैज डन बीएससी इन एआई, और वो मुझे कहता है कि जी मैंने बाहर जाना है सर, तो व्हाट डू यू रिकमेंड मी कि मैं कौन सा प्रोग्राम कंसीडर करूं, कौन सा इंस्टीट्यूट कंसीडर करूं? तो व्हाई नॉट आई वुड टेल हिम दैट एआई एंड डाटा साइंस इज अवेलेबल इन अवेंसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट इज रैंक्ड नंबर 1। सो इससे आगे फिर मेरे ख्याल में कोई इंस्टीट्यूट की ऑप्शन रहती ही नहीं है वो स्टूडेंट के लिए। तो अभी बात करते हैं आपकी टीम मेंबर्स के बारे में, तो आप अपने टीम मेंबर्स को कैसे गाइड करते हैं? अगर उनको कोई स्पेसिफिक टास्क देना हो तो उसको एक मैनेजर, एज अ मैनेजर आप उन्हें कैसे उनके साथ पेश आते हैं? ऑब्वियसली हम लोगों के बिहेवियर आपस में बहुत Yes. फ्रेंडली हैं। जहां तक बात करें टास्क की, तो व्हेन अ पर्सन इज हायर्ड हिज जॉब डिस्क्रिप्शन इज मेंशन्ड, फिर फ्लॉज हर एक में होते हैं जो विद पैसेज ऑफ टाइम एलिमिनेट किए जाते हैं।
जैसे कि अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉय है एंड ही इज नॉट गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आई वुड एडवाइज हिम कि आप इसको इस तरह से इम्प्रोवाइज कर दो। अगर उसकी किसी कंट्री के ऊपर ग्रिप अच्छी नहीं है तो मैं उसको कहूंगा कि इस कंट्री के मुताबिक ये चीजें आप अच्छी करो, यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये चीजें देखो, स्कॉलरशिप्स इस की ये याद करो, स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स के एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऐसे याद करो। सो दिस इज हाउ वी हेल्प ईच अदर आउट। तो मैनेजर के मतलब कि मैनेजर का जो अपने लेबर्स हैं उसके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, आपका ये मतलब कि बिहेवियर अच्छा होना चाहिए सही। मैंने आपको शुरू में बताया कि द मोर द फ्रेंडली बिहेवियर इज, द मोर टीम वर्क इट डज। क्योंकि जितना आप आपस में क्लोज होगे, टारगेट्स गोल्स इकट्ठे अचीव कर सकोगे। अगर आपकी टीम के साथ अपनी नहीं बन रही तो फिर टीम आपसे जो उनसे काइंड ऑफ डिसहार्टेड भी रहेगी और वो फिर उस तरह से मोटिवेट होकर काम भी नहीं करेगी। अगर फ्रेंडली और मोटिवेटेड रहोगे तो यू विल अचीव योर गोल्स।